We shall discuss about quality teacher education with a special reference to Bihar as a state, and in the process we shall outline the lecture. As you can see, we have identified certain parameters of quality. Those are human resources, material resources, time resources, and you can also say time management, sound curriculum, clearly stated objectives, and number of quality institutions. So if we have to take care of the quality teacher education in the country in general and in the state like Bihar in particular, we have to take care of human resources, material resources, time resources, and we have to develop sound curriculum. The objectives of the curriculum, rather the program, must be clearly stated, and the institution and her quality is also an important parameter. So when we talk about the human resources, we have to discuss about the teacher, a student, and other supporting persons. In the quality of teacher, we should discuss various parameters, rather various qualities the teacher has to possess. So under human resource development, teacher is an important aspect which we shall discuss in detail, and now the student is also the important parameter, as this is the main target group of entire teacher education program. So what are the important aspects related to a student we shall discuss. Then we shall come on the other supporting personnels. And what are those? The persons who is contributing as a supporting staff, being in the system or outside the system. So we shall discuss about the other supporting personnels. Then we shall discuss time management. After time management, we shall discuss the curriculum, the factors related to curriculum, as it is also an important parameter of quality of a teacher education program, you can say, or the system, you can say, a number of quality institutions. So we shall start the lecture with these parameters. So we have already discussed, rather outlined the lecture. Now we shall start to discuss each dimension individually. You can see human resources, and human resources, three types of resources has been taken here: teacher as a resource, as a human resource, student as a human resource, and other supporting personnel. You can see the internal who is working in the system and the external who is helping the system from outside. That may be external examiner and like that. So the quality of a teacher education program largely depends on the teacher, and the teacher has certain quality, and among them the subject knowledge of the teacher is most important. Without subject knowledge, nothing is important. If a teacher is knowledgeable, unless or until he is knowing the pedagogy or tricks and techniques of technology,
he can be a good teacher, but if he or she is not knowing the content matter, the subject, he or she can be anything but not a teacher. And next to subject knowledge, communication is and other skills are related. How to communicate? Communication is a skill means the person is known to the tricks and techniques of communication, and in the same time he or she is having a good sound. कोई तुतला रहा है जिसकी आवाज बुलंद नहीं हो, वो अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता है। और उसके अलावा बहुत सारे और भी रिलेटेड स्किल्स हैं, जैसे सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल, क्वेश्चनिंग स्किल। जो कुछ स्किल्स ऐसे हैं जो टीचिंग के स्किल्स हैं, जिसमें क्वेश्चनिंग स्किल्स हो गया, स्टिमुलस वेरिएशन है। तो कम्युनिकेशन के स्किल में हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, सेंडर, रिसीवर, मीडियम, मैसेज and barriers. And in the process of making the communication effective, we have to take care of certain aspects. And what are those aspects? You have to minimize the barriers of the communication process. And again, other related skills, soft skills, hard skills, teaching skills, and most importantly, researching skills. So, and knowledge of pedagogy. As and when we pronounce the concept pedagogy, it means we are talking of the science of teaching. इसमें मेथड्स भी आ जाएगा, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आ जाएंगे। तो किस शिक्षण तथ्य को किस शिक्षण विधि की मदद से ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से बनाया जा सकता है, उसमें कौन कौन से टीचिंग एड्स को सेलेक्ट करना चाहिए, आदि जो टीचिंग का एक साइंस है, उसकी मदद से हमको उसको इनरिच करना पड़ेगा। और टीचर मस्ट नो हाउ टू इवेल्युएट, सो ही और शी हैज टू बी एन इवेल्युएशन एक्सपर्ट। इवेल्युएशन एक्सपर्ट का मतलब ये है कि फीडबैक हम दे सकें अपने इवेल्युएशन के फलस्वरूप, और ऑब्जेक्टिव जिनको ध्यान में रख के हम शिक्षण कार्य को संपादित कर रहे हैं, उस शिक्षण कार्य के संपादन के बाद हम उन उद्देश्यों को आधार बनाकर मूल्यांकन करें जिनके लिए हमने शिक्षण के कार्य को संपादित किया। तो इवैल्यूएशन एक्सपर्ट के रूप में इवैल्यूएशन के सारे टेक्निक्स को जानना पड़ेगा, और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि टीचिंग एंड टेस्टिंग आर नॉट separated, rather they are interrelated. Teaching and testing go together. और इफेक्टिव टीचिंग का सीधा प्रभाव इवैल्यूएशन पर भी पड़ता है, और यदि इवैल्यूएशन इफेक्टिव नहीं है तो टीचिंग इफेक्टिव होगा बहुत कम संभावना है। साउंड नॉलेज ऑफ फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। यदि टीचर आप हैं तो फिलोसफिकल एस्पेक्ट जो है एजुकेशन का, उसकी सोशियोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है वो, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, और बहुत सारा ट्रिक्स एंड टेक्निक्स जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं जिसकी आजकल कुछ ज़्यादा ही चर्चा हो रही है, उन सारी चीज़ों का भी ज्ञान होना जरूरी है। आपको एपरेटस हैंडल करने आना चाहिए, आपके शिक्षा के सिद्धांत, शिक्षा के दर्शन की जानकारी होनी चाहिए, शिक्षा के मनोविज्ञान की आपको जानकारी होनी चाहिए, बच्चे के डेवलपमेंटल नॉलेज की जानकारी होनी चाहिए, वो कैसे इंटरेस्टेड होंगे, कैसे उनको मोटिवेट किया जा सकता है, और फिर सोसाइटी से रिलेटेड जो एस्पेक्ट है या आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी को एक टीचर के रूप में, उस एस्पेक्ट का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का ज्ञान, और टेक्नोलॉजी के ज्ञान के क्रम में आपको न केवल एपरेटस का इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि जो सॉफ्टवेयर अप्रोच है टेक्नोलॉजी का, उसका भी आपको ध्यान रखना। इनोवेटिव एंड रिसर्चिंग स्किल, हमने ऊपर स्किल में भी रिसर्चिंग स्किल की चर्चा की, और यहाँ इनोवेटिव, जैसे जितने भी सिद्धांत हैं वो आखिरी नहीं है, जितनी भी बातें शिक्षण से संबंधित, शिक्षण के विज्ञान से संबंधित कही गई हैं वो आखिरी नहीं है, उसमें ऐड किया जा सकता है। और इसीलिए टीचर को नित्य अपने अनुभव के आधार पे, क्लासरूम ट्रांजैक्शन में अर्जित किए गए ज्ञान के आधार पे
इनोवेट करते रहना चाहिए कि कैसे हम शिक्षण को और ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। और फिर रिसर्च, जो पहले हुआ है वही आखिरी नहीं है, ये आगे तक बढ़ता जा सकता है। ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के भी उनको आगे बढ़ना चाहिए। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, टीचर सिर्फ क्लासरूम कम्युनिकेटर नहीं हो, बल्कि वो इंटरपर्सनल रिलेशन को भी समझने वाला व्यक्ति हो। और इंटरपर्सनल रिलेशन को यदि आप समझते हैं तो आप सही माने में अपने सॉफ्ट स्किल का इस्तेमाल करते हैं। कहा यह जाता है कि एक व्यक्ति का हार्ड स्किल वह स्किल है जो उसको अपने प्रोफेशन में सफलता दिलाती है, लेकिन सॉफ्ट स्किल वह स्किल है जो व्यक्ति को लाइफ में सक्सेसफुल बनाता है। तो ये यहाँ आप गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आप व्यवहार जो आपका हो वो बहुत सामंजस्य बैठा के हो, बहुत उस पर आप ध्यान दें, ताकि आपका एक इमेज ऐसा हो जिससे आपसे कोई भी कम्युनिकेट करने का प्रयास करें। यदि आप अपने को हिटलर टाइप के टीचर के रूप में ढाल लेते हैं, आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो आपका बहुत कुछ जो निकलना चाहिए कम्युनिकेशन प्रोसेस को और टीचिंग को फैसिलिटेट करने के क्रम में वो नहीं निकल पाएगा। एंड ऑप्टिमम नंबर ऑफ टीचर्स, जनरली इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है, हम जिस देश के नागरिक, जिस राज्य के नागरिक हैं, उसमें यदि हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन का दें तो वहाँ भी जॉस इनरोलमेंट रेशियो के क्रम में हम सबसे नीचे हैं। और यदि हम राइट टू एजुकेशन के तहत टीचर टॉट रेशियो का एग्जाम्पल दें तो हमारे यहाँ टीचर और टॉट के रेशियो भी ज़्यादा है, मतलब एक टीचर पे स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है। सो यदि हम क्वालिटी की बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स की बात करनी होगी। और ह्यूमन रिसोर्स में हमारा पहला रिसोर्स, जिसको हम लोग टेक्नोलॉजी की भाषा में मानते हैं कि टीचर भी सिस्टम का इनपुट होता है, तो उस एस्पेक्ट को हमको ध्यान रखना होगा। और इस ध्यान रखने के क्रम में टीचर के सब्जेक्ट नॉलेज, उसके कम्युनिकेशन, उसके पेडागॉजी के नॉलेज, उसके इवैल्यूएशन के नॉलेज, उसको फाउंडेशन जो हमारा है एजुकेशन का, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, और आज एक नया भी हम ऐड कर सकते हैं टेक्नोलॉजी, उसका ज्ञान होना चाहिए। वो एक इनोवेटिव प्रवृत्ति का आदमी हो जो हमेशा रिसर्च, शिक्षण को कैसे प्रभावशाली बनाया जा सकता है इसके रिसर्च करते रहे, उसका अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करने की कैपेबिलिटी इंटरनलाइज की है, पाया है। और फिर जो ये गवर्नमेंटल इशू है कि बिना टीचर की पर्याप्त संख्या के शिक्षण व्यवस्था को और शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को और अंत में शिक्षा को हम प्रभावशाली नहीं बना सकते। और फिर तब हमारा टीचर एजुकेशन पाठ्यक्रम या टीचर एजुकेशन कार्यक्रम अच्छा नहीं हो सकता है, क्वालिटी उससे नहीं होती। स्टूडेंट जिसको हम सेलेक्ट करते हैं, चाहे वो सिलेक्शन का हमारा जो भी मोड हो, उसके पास यदि वो हिंदी का शिक्षक बनना है उसे, तो हिंदी का साउंड नॉलेज होना चाहिए। अमूमन आजकल जो हम लोग टेस्ट दे रहे हैं उसमें उसके नॉलेज को टेस्ट करते हैं, लेकिन हम इंटेलिजेंस के टेस्ट के आधार पे उसके दूसरे एस्पेक्ट के को ज़्यादा मेजर करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और उसके कंटेंट नॉलेज को, जो जिस विषय का उसको शिक्षक होना है उस विषय का नॉलेज को इग्नोर करते हैं। तो साउंड सब्जेक्ट नॉलेज इज वेरी एसेंशियल फॉर द स्टूडेंट, rather we can say the pupil teacher. A student who is in the process of becoming a teacher is also known as pupil teacher and prospective teachers, you can say. Good communication skill. हम किसी मूक या तुतलाने वाले को जो बोल नहीं सकता है ठीक से, उसको सब कुछ बना सकते हैं और कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन शिक्षक नहीं बना सकते हैं। तो उसकी आवाज़ होनी चाहिए, और आवाज़ के साथ साथ कम्युनिकेशन के जितने भी साइंस हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेस से लेकर उधर कम्युनिकेशन के जो एलिमेंट हैं और उसके जो कम्युनिकेशन के बैरियर्स हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स हो, फिजिकल बैरियर्स हो, उन बैरियर्स को कैसे कंट्रोल किया जाए उसका ज्ञान उसको देना होगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास बुलंद आवाज़ हो, स्वस्थ आवाज़ हो, और फिर हम उसको बता दें कि कैसे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाया जा सकता है, कैसे जो हमारे
इंटरनल इनहिबिशन है उसको कम करके, लर्नर्स के इंटरनल इनहिबिशन को कम करके, और फिर फिजिकल साइकोलॉजिकल डिफरेंट तरह के जो बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन है उसको मैनेज करके हम ज़्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन करा सकते हैं और भविष्य के लिए उसे अच्छा शिक्षित बना सकते हैं। साउंड नॉलेज ऑफ साउंड लैंग्वेज नॉलेज, भाषा के बिना नहीं, चाहे वह भाषा हिंदी हो, अंग्रेजी हो, यदि शिक्षक एक से अधिक भाषा जानता है तो और अच्छी बात है, लेकिन जिस भी भाषा में उसको कम्युनिकेट करना है उसको न केवल बेसिक नॉलेज उसका उनको देना है बल्कि उसको शार्प भी करना है। सो ही और सी मस्ट बी इन ए पोजिशन टू कम्युनिकेट, टू स्पीक एंड टू राइट करेक्टली एंड विथ ड्यू फोकस एंड ड्यू इंटेंसिटी। फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग, देखा ये गया है कि टीचिंग प्रोफेशन में लोग आ जाते हैं लेकिन उन्हें लगता रहता है कि जहां हम आ गए हैं ये मेरे लिए सही जगह नहीं है, और इसके क्रम में क्या होता है कि जस्टिस नहीं कर पाते। और रिसर्च फाइंडिंग्स बताता है कि एटीट्यूड हैज इट्स बियरिंग ऑन अचीवमेंट। सो देयर इज ए पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एटीट्यूड टुवर्ड्स a particular subject and attitude and achievement regarding a particular subject. So far as the favorable attitude towards teaching and effectiveness in teaching is concerned, it is also correlated. So we must take care of the favorable attitude of the prospective teachers. It has its bearing on the quality of entire teacher education program and ability of टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस। टीचर को दूसरे की बात, जब सृजनशीलता की हम बात करते हैं तो कहा यह जाता है कि आप अपने क्लासरूम में यदि सृजनशीलता को फोकस करना चाहते हैं, फोस्टर करना चाहते हैं, तो आप बच्चे के पिक्यूलियर आंसर को रिसीव करिए, सुनने का प्रयास कीजिए। तो टीचर को एक्सेप्ट तो करना ही होगा, टॉलरेट भी करना होगा, बातों को सुननी होगी। यदि कोई मैथ्स, जनरली ये नोशन है बच्चों में कि मैथ्स के टीचर, साइंस के टीचर, इंग्लिश के टीचर थोड़ा सा एरोगेंसी की वजह से क्या होता है कि अपनी बातों को कहने के क्रम में ईगो प्रोजेक्ट कर देते हैं और दिखता है कि ये टॉलरेंट नहीं है उतना। तो इससे क्या होता है कि बच्चे उनसे पूछते नहीं है और वो अच्छे टीचर हो के भी उतने अच्छे टीचर नहीं साबित हो पाते हैं। सो स्टूडेंट रिलेटेड जो हमारे एस्पेक्ट हैं, जो प्रोस्पेक्टिव टीचर की तरफ हमारा इशारा है, sound subject knowledge, good communication skill, sound language knowledge, favorable attitude towards teaching as a profession, ability of tolerance and acceptance, दूसरे की बात सुन सके और दूसरे की बात को एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति। अदर रिसोर्सेज में हमने बताया कि दो तरह के रिसोर्सेज, एक जो व्यक्ति जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं और दूसरे वो व्यक्ति जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से बाहर काम करके बहुत सारी एक्ट एंड एक्टिविटीज में उसको हेल्प करते हैं। तो जब हम अदर रिसोर्सेज की बात करते हैं, अदर सपोर्टिंग पर्सनस की बात करते हैं, तो इसका कार्डिनल प्रिंसिपल हमको ध्यान रखना पड़ेगा। पेज, PEG, P stands for pride, E stands for enjoyment and G stands for growth. So for it is one of the cardinal principle of any institution building. If any institution has to grow, we have to take care of this page, PEG. P stands pride, enjoyment and growth. So pride among all the working members of the community, including the teaching faculty and the students as well. Enjoyment, he or she must enjoy whenever he or she is working in the system of teacher education, and some sort of growth in terms of building, in terms of infrastructure, in terms of number of students, in terms of number of seats, in terms of number of teachers, and in terms of programs whatsoever. But the institution must be in a state of growth, कुछ न कुछ उनमें ऐड होता चला जा रहा है। So we, in order to take care of the other supporting personnel, we have to use this cardinal principle of institution building, that is pace, pride, enjoyment and growth. Institution climate and environment, conducive atmosphere होना चाहिए। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में आजकल राजनीति चलती है,
जो इंस्टीट्यूशन जिस काम के लिए बना है उसकी चर्चा नहीं होती है, वहाँ काम करने का स्वस्थ माहौल नहीं होता है। तो इंस्टीट्यूशन में सारे रिसोर्सेज हैं, यदि ह्यूमन रिसोर्स भी है, उसके पास यदि ये स्टूडेंट का भी रिसोर्स बहुत अच्छा है, सारी फैसिलिटीज़ भी अच्छी है, फिर भी यदि इंस्टीट्यूशन का क्लाइमेट अच्छा नहीं है, कंड्यूसिव नहीं है, इंस्टीट्यूशन का जो लाइफ है वो वाइब्रेंट नहीं है, और इंस्टीट्यूशन का क्लाइमेट वर्किंग नहीं है, ऑपरेटिव नहीं है, वहाँ के इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स वगैरह है, तो फिर वो भी बहुत निगेटिवली इफेक्ट करता है। फेथ इन दिस सिस्टम जनरली आजकल देखा ही जाता है कि खासकर गवर्नमेंट जो सिस्टम्स हैं उनमें लोगों का फेथ ही नहीं, टीचर में फेथ नहीं है, स्टूडेंट में फेथ नहीं है, ऑफिस में जो काम कर रहे हैं उनमें लोगों का फेथ नहीं है, जो बाहरी एग्जामिनर आ रहे हैं उनका सिस्टम में फेथ नहीं है। तो सिस्टम एज ए होल, टीचर एजुकेशन एज ए प्रोग्राम, टीचर एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशन, इसमें सब लोगों का फेथ होना चाहिए। और ऑब्वियस है कि फेथ कहीं से बाजार से खरीदी जाने वाली चीज़ नहीं है, इसको इनकलकेट करना पड़ेगा। वैसे काम होंगे तभी उसमें फेथ होगा, और जब फेथ इन दिस सिस्टम सारे लोगों का होगा तभी क्वालिटी इंप्रूव होगी। प्रिंसिपल स्टाफ रिलेशनशिप, स्टाफ के साथ प्रिंसिपल का इंटरेक्शन कैसा है, बहुत दूरी मेंटेन करते हैं, कम्युनिकेट नहीं करते हैं, यदि डिफरेंट तरह की राजनीति चलती है तो इससे क्वालिटी आपकी अफेक्ट होगी। फिर स्टाफ एंड स्टाफ स्टूडेंट, ऑब्वियस है कि ये जितने भी वर्किंग समूह हैं उनके बीच एक अच्छे रिलेशनशिप का होना बहुत जरूरी है। यदि अच्छा रिलेशनशिप नहीं है तो निश्चित रूप से क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी। एंड रोल ऑफ एग्जामिनर्स, आप कृपांक मत दीजिए, आप डिजर्विंग स्टूडेंट को दीजिए मार्क्स, क्योंकि चाहे वो थ्योरेटिकल आप कॉपी देख रहे हो या फिर प्रैक्टिकली आप स्टूडेंट को इवेलुएट कर रहे हैं। देखा यह जाता है कि टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में ये शिकायत तो ज़्यादा ही मिल रही है इन कंपैरिजन टू अदर सिस्टम। सो द रोल ऑफ एग्जामिनर इज ऑल्सो very important, and if the examiners are playing their role properly, obviously the learners and the other target groups will get their interest rather their faith in the system and the examiner. So this is all about the first aspect, the first parameter, that is human resource. So we have discussed about the teacher, about the student, and about other personals working directly or indirectly in the system of teacher education. And now time management. So we have to manage time, and in the process of time management we have to plan how we can manage our time. We have to develop a calendar, that is activities calendar. साल भर में हमको कौन कौन सी एक्टिविटीज करनी है, कौन सा एक्टिविटीज कब करानी है, और ये कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसको डिफाइन किया जा सकता है। अदर एक्टिविटीज, जानते हैं कि हमारा जो एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है वो सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन तक सीमित नहीं है, हम आगे की भी बात करते हैं। तो अदर एक्टिविटीज कैलेंडर जो हमारे हैं उसका भी बनाने की ज़रूरत है, जिसमें हमारा स्पोर्ट्स कब होगा, कौन कौन से स्पोर्ट्स होंगे, और फिर उसके और भी मैकेनिज्म कौन ऑर्गेनाइज करेंगे, उसमें कैसे आप प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये सारी चीज़ें, मतलब दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कैलेंडर। एंड कल्चरल कैलेंडर, स्पोर्ट्स कैलेंडर, कल्चरल कैलेंडर, एंड टुगेदर वी कैन से दैट अदर एक्टिविटीज कैलेंडर एंड इवैल्यूएशन कैलेंडर। अभी हमने कहा कि टीचिंग जितना इम्पोर्टेंट है, इवैल्यूएशन उतना ही इम्पोर्टेंट है, और जब हम कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन और कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो यह और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कब किस तरह के इवैल्यूएशन हमको करने हैं, ऑब्वियस है कि इंटरनल जो इवैल्यूएशन होते हैं जो यूनिवर्सिटी लेती है उसका प्रोग्राम तो बन जाता है, लेकिन हमको अपने इंटरनल इवैल्यूएशन का जो प्रोग्राम है, कैलेंडर है, उसको बनाना है कि कब हमको टेस्ट लेने हैं, यूनिट टेस्ट कितने होंगे, हमारा यदि वाइवा का ही कोई टेस्ट हमको लेना है तो हमको कब लेना है, कैसे लेना है। एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्कॉलिस्टिक एंड नॉन स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट अब ये कह रहा है कि
there is no concept of curricular and extracurricular activities. It means the extracurricular activities is as important as the curricular activities. So there is no separation, but we have to take care of some academic activities and some other activities that is also for academic purpose. Science fair, mathematics fair, हिस्ट्री फेयर, एक्सकर्शन, टूर और बहुत सारे मेला वगैरह को लगा के कार्यक्रम को आयोजित करके, तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्कॉलिस्टिक एंड नॉन स्कॉलिस्टिक एक्टिविटीज, मतलब हमारा जो कार्यक्रम टीचर एजुकेशन का हो वो सिर्फ एकेडमिक एस्पेक्ट पे फोकस नहीं हो, अदर जो एस्पेक्ट है जिसको अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट और ज़्यादा इम्पोर्टेंस के साथ कह रहा है कि दोनों समान महत्व की चीज़ें हैं, उसको फोकस करनी चाहिए। देन क्यूरिकुलम का मतलब ये है कि वो चीज़ जो जिसको हम निर्मित करते हैं, यह ध्यान में रखकर यह पाठ्यक्रम जो अधिगम अनुभव चाहिए इसको पढ़ने के फलस्वरूप, इससे गुजर जाने के फलस्वरूप व्यक्ति उसको प्राप्त करे। मतलब हमको कैसा टीचर चाहिए, कैसा आउटपुट चाहिए, और इस क्रम में हमको करिकुलम को बनाना है। तो वो करिकुलम बनाने में हमको ध्यान रखना होगा कि करिकुलम की जो प्लानिंग है, करिकुलम का जो मैनेजमेंट है एंड करिकुलम का जो इवैल्यूएशन है, तो इस तीनों में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तीसरी बात, एक बड़ी एजेंडा चल रहा है इस देश में, इसको बहुत सावधानी से इसको एम्पिरिकल स्टडीज के माध्यम से और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ हमने लिखा है नंबर ऑफ ईयर्स कि बीएड का कार्यक्रम इस देश के लिए कौन सा बीएड का कार्यक्रम सुटेबल है। और जब हम इस देश की बात करते हैं तो यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, यहाँ के फिनेंशियल कंडीशन की बात करते हैं। यदि हम ज़्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं, हम ज़्यादा टीचर को नियुक्त करने की स्थिति में नहीं है, तो हम पहले सिस्टम को दुरुस्त करें और तब प्रोग्राम के में बदलाव लाने की कोशिश करें कि 1 साल से 2 साल या 2 साल से 4 साल। जैसे हमारा पटना यूनिवर्सिटी की यदि हम बात करें तो यहाँ 5-6 साल से हमारे कोर्सेज 2 साल बीएड का कोर्स चल रहा है और 2 साल के लिए जितने सेंक्शन पोस्ट की ज़रूरत है, अभी कैबिनेट से पोस्ट ही सेंक्शन नहीं हुआ है, पता नहीं कब होगा। ये प्रॉब्लम है। देश कह रहा है कि 4 साल का बीएड सब जगह लागू हो जाए, हमें नहीं लगता कि इसके लिए देश हमारा तैयार है। तो इस पर भी बड़ी शिद्दत से डिस्कस होना चाहिए कि हमारा करिकुलम कितने वर्ष का हो, 1 साल का हो, 2 साल का हो, 4 साल का हो। जब तक 1 साल का कार्यक्रम चल रहा था, यदि उसका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो रहा था तो निश्चित रूप से वो भी प्रभावशाली था। लेकिन अब जब हमने 2 साल के कार्यक्रम को चलाया है या फिर हम 4 साल के कोर्स को चलाने वाले हैं और उसमें हम इम्प्लीमेंट को ठीक नहीं कर पाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस को हम फेस नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से हमको 1 ईयर बीएड प्रोग्राम की तरफ ही जाना चाहिए। क्योंकि सिर्फ कोर्स बदल देने से, करिकुलम बदल देने से हमारा काम नहीं चलेगा। करिकुलम का ट्रांजैक्शन होना, करिकुलम का इवैल्यूएशन होना और करिकुलम को इम्प्लीमेंट करने के क्रम में जितने ह्यूमन रिसोर्सेज और जितने मटेरियल रिसोर्सेज की ज़रूरत है उसको हम फुलफिल करने की कंडीशन में यदि नहीं है तो पुराने कार्यक्रम को ही हम चालू रखें, यही हमारे लिए बेहतर है। रेशियो ऑफ कंटेंट एंड पेडागोजी, कितना कंटेंट चाहिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि अब पेडागोजी पे इतना फोकस कर देते हैं, कंटेंट नॉलेज से उसको कोरिलेट नहीं कर पाते। तब जबकि हमारा बहुत सारा जो टीचिंग पे रिसर्च है, वो सारे रिसर्च हम इशारा करते हैं कि कंटेंट और पेडागोजी के बीच में एक इंटीग्रेशन होना चाहिए। और इस इंटीग्रेशन में के क्रम में हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि दोनों का रेशियो क्या हो। हम कंटेंट पे कितना फोकस करेंगे और पेडागोजी पे कितना फोकस करेंगे, क्योंकि बिना कंटेंट नॉलेज के हम पेडागोजी यदि पढ़ा भी देते हैं तो उसका बहुत फायदा नहीं है। ये करिकुलम के क्रम में इवैल्यूएशन का कंसेप्ट आता है और वो 2 तरह के हम इवैल्यूएशन जनरली करते हैं, क्राइटेरियन रेफरेंस, एक क्राइटेरिया के अगेंस्ट और दूसरा नॉर्म रेफरेंस, मतलब जैसे नॉर्म के अनुसार, क्लास इज ए नॉर्म, पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन, चौथा पोजीशन। हमने यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम दिया उसमें इसका ध्यान रखा। लेकिन क्राइटेरियन का मतलब है कि एक क्राइटेरिया हम ले सकते हैं कि ब्लैक बोर्ड पे लिखने आया कि नहीं आया, क्वेश्चन बनाने आया कि नहीं बनाया, क्वेश्चन सेट करने आया, क्वेश्चन
कोई इवेलुएट करने आया कि नहीं आया, फीडबैक देने आया कि नहीं आया, मतलब वे सारे महत्वपूर्ण कार्य जिन कार्यों को एक शिक्षक को संपादित करना है, उन कार्यों से संबंधित पैरामीटर बना के तब उनका मूल्यांकन हो। क्योंकि जब हम किसी तबला वादक का सिलेक्शन करते हैं तो तबला बजवा के देखेंगे, तो टीचर का जब सिलेक्शन कर रहे हैं तो टीचर जिस काम के लिए हम नियुक्त कर रहे हैं उन सारे पैरामीटर पर उसका इवैल्यूएशन होना चाहिए। सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम की डिग्री, यदि उसका राइटिंग पावर अच्छा है, एग्जाम में रट के लिखने की प्रवृत्ति अच्छी है, तो उसको हम पास आउट कर दें या अच्छा रिजल्ट दे दें, यह जस्टिफाइड नहीं है। सो वी हैव टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन द क्राइटेरियन रेफरेंस इवैल्यूएशन and the non-reference evaluation. Rather, we have to incorporate both the types of evaluation in the process of teacher education program, that is criteria based and that is non-based. Clearly stated objectives of it. हमको क्या चाहिए, हमको कैसा टीचर चाहिए, और जैसा टीचर चाहिए उसी के अकॉर्डिंगली हमारा ऑब्जेक्टिव्स तीनों डोमेन को ध्यान में रख के, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर ध्यान में रख के हमारा बनाया जाना चाहिए। क्लियरली स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द करिकुलम, कि इस करिकुलम के पढ़ने के फलस्वरूप छात्र किस किस तरह का अधिगम अनुभव प्राप्त करेगा। और चूंकि हमारा ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाइड और डिफाइन होगा तो हमारे जो अदर एक्टिविटीज हैं डिफाइंड होंगे, और ऑब्वियस है कि तब हमारे प्रोडक्ट हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर हो पाए। व्हाई टू प्रिपेयर टीचर्स, इस सवाल का हमको जवाब देना पड़ेगा कि हमको टीचर क्यों चाहिए। पढ़ाने के लिए, जनगणना के लिए, वोटर लिस्ट बनाने के लिए, सोशल एक्टिविटीज के लिए, कल्चरल प्रोग्राम कराने के लिए, जिसको हमने शुरू में कहा कि क्राइटेरिया। तो ये व्हाई टू प्रिपेयर ए टीचर्स, इसका जवाब हमको ढूंढ लेना चाहिए। टीचर के जो नॉलेज है, टीचर प्रोग्राम का जो करिकुलम है, और टीचर को जो वास्तव में समाज में करना है, उसके बीच में एक तारतम्यता होनी चाहिए। अदरवाइज कंस्ट्रेन होगा सिस्टम के लिए भी और कंस्ट्रेन होगा टीचर। फिलॉसफी बिहाइंड टीचर एजुकेशन, हाँ ये मैं अक्सर कई बार उठा चुका हूँ कि जनरली वी इमेजिन रादर वी एक्सपेक्ट एन आइडियलिस्ट टीचर फॉर ए प्रैग्मेटिक सेटअप। तो जब सेटअप प्रैग्मेटिक है तो आप टीचर को आइडियलिस्ट बना नहीं सकते हैं, आइडियलिस्ट रख नहीं सकते हैं। या तो आप सिस्टम, पूरे सिस्टम को आइडियलिस्ट बनाइए, या फिर टीचर को भी प्रैग्मेटिक सेटअप में एडजस्ट करने के गुण से परिचित कराइए। अदरवाइज कंस्ट्रेन होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, और फिर जिस चीज़ को हम चाहते हैं टीचर एजुकेशन में इनकलकेट करना, वो नहीं हो पाए। नंबर ऑफ क्वालिटी इंस्टीट्यूशन, बिना क्वालिटी इंस्टीट्यूशन के हम अच्छे टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि इंस्टीट्यूशन में ही बच्चा टीचर एजुकेटर लर्न करता है, इंस्टीट्यूशन में ही टीचर लर्न करता है, और वही लर्न किया हुआ टीचर स्कूल में जाता है। देखने में आ रहा है कि हमारे बिहार में टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की घोर कमी है। घोर कमी की ये स्थिति है कि अनडिवाइडेड बिहार में भी हमारे पास सिर्फ पटना यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और फैकल्टी ऑफ एजुकेशन हमने डेवलप किया। बाकी आज जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं वो सारे कोर्सेज चल रहे हैं इस तरह से कि सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स के तहत चल रहा है। वहाँ हमने जैसे तैसे फैकल्टी का कंसेप्ट डेवलप कर दिया, डीन की नियुक्ति कर दी, कहीं किसी को हेड भी वैसे ही बना दिया, चाहे वो व्यक्ति एजुकेशन का हो, कहीं कहीं तो साइकोलॉजी के लोगों को भी बना दिया। तो ये द्वयम दर्जे का बिहेवियर टीचर एजुकेशन के साथ ये क्वालिटी को निश्चित रूप से डिटोरिएट करेगा। तो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन डेवलप करना चाहिए, स्पेशली बिहार में, क्योंकि आप उड़ीसा को देख लो, वेस्ट बंगाल को देख लो, उत्तर प्रदेश को देख ले, जितने भी इसके ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज हैं सब में फैकल्टी और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। So we have to develop faculty of education in all the related university of
आवर स्टेट, और फिर वहाँ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को की। और ये नेशनल लेवल का इशू है, नॉट इट इज़ नॉट ट्रू विद रेस्पेक्ट टू बिहार ओनली। तो गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जस्टिस वर्मा कमेटी के रिपोर्ट को कोट करते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट ने कहा कि अराउंड 95% टीचर एजुकेशन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन। इज इट ए वेलफेयर स्टेट? वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ इंक्लूसिव नेचर ऑफ एजुकेशन, सेलेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। और हमारे यहाँ एक बड़ी संख्या है फर्स्ट जनरेशन लर्नर की। अभी ये जो कोरोना काल में ही हम लोग देख रहे हैं, इतनी गरीबी, इतनी विपन्नता, इतनी कठिनाई है, और ये एजुकेशन में भी सही है। वैसे लोगों को जिनको हम आरक्षण की मदद से, जिनको हम सब्सिडी की मदद से मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, उनको यदि हम सही माने में मजबूत बनाना चाहते हैं, उनको एजुकेशन को इनरिच करना होगा। और इस क्रम में क्या करना होगा कि आपको नंबर ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट टीचर एजुकेशन कॉलेजेस को बढ़ाना होगा। और हमने अभी ये कहा कि बिहार में तो गिने चुने कॉलेज ही हैं सरकारी, पटना यूनिवर्सिटी, और फिर कहीं हमारे जैसे भागलपुर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, और इस तरह के बहुत गिने चुने इंस्टीट्यूशन सरकारी हमारे पास हैं। तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। इसमें आप टीचर एजुकेशन के साथ यदि द्वयम दर्जे का व्यवहार करेंगे तो इसका प्रभाव इसकी गुणवत्ता पर निश्चित रूप से पड़ेगा। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द रेशियो बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, एंड इट मस्ट नॉट बी इन एनी कंडीशन लेस देन 50-50। यदि टीचर एजुकेशन के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन 50 है, तो टीचर एजुकेशन के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन को भी 50% जिम्मेवारी लेनी होगी, ताकि हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर सकें, मार्जिनलाइज सेक्शन के डेवलपमेंट की बात कर सकें। क्योंकि पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन की जिम्मेवारी ही है कि मार्जिनलाइज सेक्शन को अपलिफ्ट करें, और यह बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी इस देश में फर्स्ट जनरेशन लर्नर की काफ़ी संख्या है। रोल ऑफ रेगुलेटिंग बॉडी, एनसीटी का जो रोल है उसके बारे में बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है, मतलब उसमें फेथ नहीं। अभी हमने एक बात कही थी सिस्टम में फेथ की, और यहाँ भी है कि रोल ऑफ रेगुलेटिंग बॉडी फेथ करें। कभी आप नियम बना देते हो कि ये क्वालिफिकेशन होगा, और कभी तुरंत आप क्वालिफिकेशन चेंज कर देते हैं, आप तुरंत मानक बदल देते हैं। तो आप टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में फेथ डेवलप कीजिए, और ऐसा काम करिए जिससे आप एक रेगुलेटिंग बॉडी में टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड टारगेट ग्रुप एंड पब्लिक इन जनरल का फेथ डेवलप हो। स्कूल ऑफ एजुकेशन एक बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन बिहार एक पोटेंशियल स्टेट है, और इसके जो लर्नर्स हैं न केवल कंट्री वाइड, वर्ल्ड वाइड सब जगह बहुत अच्छा करते हैं बाहर जाके, और हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन की कमी। हम न केवल फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एस्टेब्लिश करें, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एस्टेब्लिश करें, नए इंस्टीट्यूशन टीचर एजुकेशन के पब्लिक फंडेड खोलें, बल्कि ये स्कूल ऑफ एजुकेशन, जैसे दिल्ली में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, उस तरह से स्कूल ऑफ एजुकेशन की स्थापना करें। यदि बिहार सरकार करती है तो वेल एंड गुड, लेकिन ये काम देश में यदि एक दो भी स्कूल ऑफ एजुकेशन डेवलप हो जाए, जहाँ जैसे हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट में रिसर्च यूनिवर्सिटी, टीचिंग यूनिवर्सिटी की बात की, तो एजुकेशन से रिलेटेड या आप उसको रिसर्च यूनिवर्सिटी का नाम दे दें, स्कूल ऑफ एजुकेशन का नाम दे दें, एक ऐसी संस्था हो जिसमें बहुत ढंग से टीचिंग, रिसर्च और एक्सटेंशन वर्क पे काम हो सके। ऑफ कोर्स हमारे पास हायर एजुकेशन के लिए नीपा है, हमारे पास टीचर एजुकेशन के लिए हम लोग एनसीईआरटी में भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन उससे भी उच्च स्तर का एक स्कूल ऑफ एजुकेशन की स्थापना होनी चाहिए, ताकि वहाँ राष्ट्रीय स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कार्य हो सके। और शोध जो आज के विश्व का एक डिमांड है, हमारे देश का डिमांड है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कई बार इस पर अपील किया है, उसकी दिशा में हम ज़्यादा सार्थक काम कर सकें। सो ultimately we have discussed about the different aspects of quality of a teacher education institution, and hopefully the learners who will go through the lecture will come to know the basic concept of teacher education
and its quality. So far as B.Ed curriculum is concerned, we have a concept under the syllabus effective teacher education curriculum program. And whenever we talk of effective teacher education curriculum program, we have to take care of curriculum, we have to take care of input, output and process. The students who is getting admission, his or her quality, his her communication skill, and we have to update our process so that we could get a solid product. And if we are having an institution in which we are taking a very good input and through very effective process we get solid output, only then we can say that the curriculum, the program, rather the teacher education program is effective. So whenever we have to deal with the effective teacher education program, of course its curriculum is sound and latest, it must be related to one's life and the school curriculum, and the program must be implemented properly in order to find a sound output for the school system, because we prepare teacher for the school system. So the focus of the lecture was on quality teacher education, but this lecture will also help you to understand what are the characteristics of effective teacher education program. So this is all about the lecture. Thank you very much.